So we will discuss what is liquefative necrosis and what are its characteristics, what are the morphological changes which we will be able to observe during liquefative necrosis. So first, liquefative necrosis is characterized by digestion of dead cell results in transformation of tissues into a liquid viscous mass. Means the digestion of necrotic cell or dead cell will happen, and there will be the necrotic cells will be transformed into a liquid viscous mass. कि जो necrotic cells हैं, जब cells की death हो जाए और वो cells dead cells उनको साइटोप्लाज्म की मौजूदगी में वो क्या हो, उनको एक लिक्विड फ्लूइड उनके साथ मौजूद हो, तो इस केस को हम क्या कहेंगे, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस. Those dead cells combined with the cellular liquid are known as liquefative necrotic cells. ऐसे necrotic cells जिनके पास जो कि विस्कस मास भी मौजूद हो और वहाँ पे necrotic cells भी मौजूद हो, right? It's characteristic of focal, bacterial or occasionally fungal or viral infection as well. Means liquefatic necrosis किस वजह से होगी कि cells की death क्यों होगी और वहाँ पे liquid की accumulation क्यों होगी. That will occur due to presence of focal bacterial infection की वजह से और fungal infection की वजह से liquefative necrosis हो सकती है. Coagulative necrosis की केस में हमने क्या कहा था कि in case of coagulative necrosis there will be coagulation, means the necrotic cells will be coagulated in cellular vessels. ठीक है, ओके. अच्छा जी, स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारी डिटेल्स पूछ रहे हैं कि लिंक शेयर करें. एक्चुअली ये लेक्चर हमने मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि ये लेक्चर हमने ऑलरेडी ले चुके थे, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी हम लोगों ने, क्योंकि मुझसे रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई थी इसकी, और ये हमने 1 घंटे की क्लास ली थी. तो अब ये मैंने कहा कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर लें उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनके लिए ये लेक्चर रिकॉर्डिंग में मौजूद नहीं है. तो अगर आप साथ में ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाएगी. दिस लेक्चर इज टॉपिक इज लिक्विफेटिव नेक्रोसिस एंड वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट. ओके, इफ यू आर ज्वाइनिंग यू आर मोर देन वेलकम. ओके, बट दिस लेक्चर वाज ऑलरेडी डन. ठीक है, सफ़ा ये आपके लिए मैंने बताया है. ठीक है जी. अच्छा, फर्दर मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर ट्राइंग टू ज्वाइन अस. सीआर्स वैसे ही कह रहे थे कि स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया. इवन आई डिड नॉट शेयर लिंक. अच्छा जी, so here it is also seen in hypoxic death of cells within the central nervous system. The most important point which is very important from questions or paper point of view, कि जो coagulative necrosis होती है that is not affecting the brain cells, but liquefative necrosis is affecting the central nervous system cells as well, because in case of liquefative necrosis there will be some presence of some viral necrotic cells within the central nervous system or brain, and those viral cells will be or those destroyed or degraded viral cells will be accompanied by central nervous system fluid which is most commonly present like CSF, cerebrospinal fluid. जो brain में cerebrospinal फ्लूइड है, जो ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है, उसकी जब उसके अंदर कोई निक्रोटिक सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हों तो एट दैट टाइम वी कैन से देयर विल बी अ केस ऑफ लिक्विफेटिव नेक्रोसिस. एंड सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट liquefative necrosis exists within central nervous system as well. Why? जो हम लोगों के पास coagulative necrosis that usually does not affect brain cells, because there will be no chances of coagulation over there, क्योंकि cells की बहुत regulated way में cells को allow किया जाए. Astrocytes are actually the brain cell. Astrocytes are actually regulating the foreign materials very precisely. Usually they don't allow. That's why we can say there will be minimal or no chances of coagulative necrosis in central nervous systems or brain. Mechanism of liquefative necrosis, its autolytic and heterolytic action of enzymes convert protein of cells into liquid mass. तो हम कहते हैं liquefative necrosis का कौन सा डिटेल मैकेनिज्म है, तो उसमें ऑटोलिटिक
मींस ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शंस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हों और उसमें हम लोगों के पास जो बॉडी के सेल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन हो, ऑटोलिटिक ब्रेकडाउन मींस ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शंस जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी मौजूद हो, या फिर हिट्रोलाइटिक इन्फेक्शंस मींस ड्यू टू नंबर ऑफ रिएक्शंस। मिसाल के तौर पे इफ देयर वाज इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि आप अगर इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें तो इसका मतलब है अब उस इंडिविजुअल की बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होंगे उस इंडिविजुअल की बॉडी में, एट दैट टाइम देयर विल बी ऑटोलिटिक रिएक्शंस। लाइक autoimmune reactions means a kind of autolytic reactions where body will release its the body cells will release their content, ठीक है। तो बॉडी सेल्स अपना कंटेंट रिलीज करेंगे वहां पे और उससे वो जो कंटेंट होगा वो लिक्विड कंटेंट होगा। उस लिक्विड कंटेंट की वजह से बॉडी में जो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, फर्दर लिक्विफेटिव नेक्रोसिस मॉर्फोलॉजी। Affected area is soft with liquid center containing necrotic debris, macrophages filled with phagocytosed material, later complete loss of cellular components and cellular outlines। तो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में क्या होगा कि जो हम लोगों के पास अफेक्टेड टिश्यूज हैं या अफेक्टेड मास ऑफ सेल्स हैं दैट विल बी सॉफ्ट, क्योंकि उसमें लिक्विफेटिव नेक्रोसिस है, लिक्विड मौजूद है जो नेक्रोटिक सेल्स हैं उनके साथ। तो इट्स मीन द नेक्रोटिक सेल्स विल बी सॉफ्ट सेंटर कॉन्टेनिंग नेक्रोटिक डेब्रिसिस के। बाकी तो लिक्विड मौजूद होगा लेकिन सेंटर में इर्द गिर्द लिक्विड मौजूद है एक नेक्रोटिक एरिया या एक नेक्रोटिक टिश्यूज में, लेकिन जो सेंट्रल एरिया वहाँ पे डेब्रिसिस मौजूद है मींस सेलुलर रिमेनेंट्स मौजूद। और फर्दर मैक्रोफेजेस फिल्ड विद फेगोसाइटोज मटेरियल है। मैक्रोफेजेस आएंगे, एक्चुअली मैक्रोफेजेस विल ट्राई टू रिमूव दैट इन्फेक्शन और टू मिनिमाइज और टू मिटिगेट दैट इन्फेक्शन, और वहाँ से जो क्लियरिंग है उसको फेगोसाइटिक क्लियरेंस है उसको इन्हांस करेंगे। और इसके अलावा इस मीन लिक्विफेटिव नेक्रोसिस की जो टिश्यूज हैं ओवरऑल उनमें हम क्या, एक तो वो सॉफ्ट होंगे, फिर वहाँ पे नेक्रोटिक डेब्रिसिस मौजूद होंगी, फिर मैक्रोफेजेस मौजूद होंगे, एंड देन कंप्लीट लॉस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, और समटाइम्स वो सेल्स पूरे ही पूरे लॉस हो जाएंगे, दे विल बी अनएबल टू फंक्शन, right? So this is actually a morphology of liquefative necrosis. Further, if the process was initiated by acute inflammation, the material is frequently creamy yellow because of the presence of dead white cells and it's called pus. So in case of liquefative necrosis, the exact morphology of necrotic cells in case of acute inflammation will look like क्रीमी येलो, ठीक है। और वहाँ पे मीन्स क्योंकि हम लोग के पास जो WBC है ये जो पस का कलर होता है वो येलो होता है, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में इनिशियली जो बॉडी रिस्पॉन्स करेगी यूजिंग लिम्फोसाइट्स, तो उस केस में वहाँ पे नेक्रोटिक जो सेल्स हैं आपके पास उनकी अपीयरेंस येलोइश होगी, ठीक है, क्रीमी येलोइश होगी, एंड दैट रिप्रेजेंट्स पस काइंड ऑफ मटेरियल। तो इट्स मीन ओवरऑल यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करूँगा, समरी बताऊँगा लिक्विफेटिव नेक्रोसिस है क्या और हमने इसमें क्या पढ़ा है, ठीक है। तो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस इज अ टाइप ऑफ सेलुलर डेथ और सेलुलर डेथ इन विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज इनटू लिक्विड विस्कस मास, के जो टिश्यूज हैं डेड सेल्स हैं वो लिक्विड मास में पेनिट्रेट कर जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, राइट। दिस इज एक्चुअली अ लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। फर्दर ये किस वजह से हो सकती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे लिक्विफेटिव नेक्रोसिस होगी, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं और फंगल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। इट इज आल्सो सीन इन हाइपोक्सिस डेथ ऑफ सेल्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी लिक्विफेटिव नेक्रोसिस के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, जबकि इन केस ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस देयर विल बी नो चांसेस ऑफ in case of coagulative necrosis there will be no chances of coagulative necrosis in central nervous system। फिर हमने मैकेनिज्म की बात की कि लिक्विफेटिव नेक्रोसिस का मैकेनिज्म क्या है, तो इसमें हमने कहा कि दो तरह से लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हो सकती है, या तो ऑटोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी सेल्स या फिर हिट्रोलाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स, कि एक तो बॉडी में क्या हो कि बॉडी के सेल्स ऑटोमेटिकली उनकी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि ट्रांसफ्यूजन के केस में अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं और उस केस में
एंटीजन जो इनकम्पैटिबल ब्लड है, जब इनकम्पैटिबल ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करें तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, और इससे मुराद ये कि ऑटोलेटिक रिएक्शंस बॉडी में स्टार्ट हो गए और वो बॉडी में लिक्विफेटिव निक्रोसिस अकर हो सकती है। दूसरा मैकेनिज्म है हेट्रोलाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स, कि जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट साइट्स पे एंजाइम्स डिफरेंट तरह से एक्टिवेट होते हैं और डिफरेंट तरह से रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनकी हेट्रोलाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स की, अगर एंजाइम्स बजाय ये कि कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने की वो अगर डिग्रेडिव रोल प्ले करना स्टार्ट कर देंगे, एंजाइम्स अगर डिग्रेडिव रोल्स प्ले करेंगे तो इन दैट केस देयर विल बी चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विफेटिव निक्रोसिस। जी उस्मान हैदर, यू हैव अ क्वेश्चन? यस यू कैन आस्क प्लीज, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। जी उस्मान, आप अपना माइक अनम्यूट करो ताकि आप बोल सको, अपना माइक ऑन करो। उस्मान हैदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सर, इस पॉइंट आपका इंटरनेट वीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा बताएं। को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें जरा। किसको? उस्मान आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ऑटोलेटिक रिएक्शंस की बात कर रहे हो आप दोबारा बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही उस्मान, आपका इंटरनेट वीक है। अच्छा जी, मे बी ऑटोलेटिक मैकेनिज्म ऑफ लिक्विफेटिव निक्रोसिस की बात करें तो ऑटोलेटिक मैकेनिज्म ऑफ लिक्विफेटिव निक्रोसिस ऐसे कि सेल की डेथ हो ड्यू टू ऑटोलेसिस, ठीक है, कि बॉडी में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाए। तो निक्रोसिस तो हम किसको कहते हैं? सेल डेथ को कहते हैं। अब अगर इरिवर्सिबल सेल डेथ को कहते हैं। अब अगर हम एक इंडिविजुअल को इनकम्पैटिबल, एक इंडिविजुअल को अगर हमने उसका ए ब्लड ग्रुप है और हम उसको इनकम्पैटिबल बी ब्लड ग्रुप लगा देते हैं, अब उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी में, उस इंडिविजुअल की बॉडी में ऑटोलेटिक या हीमोलेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अब हीमोलेटिक रिएक्शंस जब स्टार्ट हुए या ऑटोलेटिक रिएक्शन, तो बॉडी में सेल्स की ब्रेक डाउन होती गई। जब बॉडी में सेल्स की ब्रेक डाउन होती गई तो उस केस में ऑटोलेटिक ब्रेकडाउन की वजह से बॉडी में, क्योंकि आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी और बाकी सेल्स प्लाज्मा मौजूद है और बाकी वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं और इसके अलावा प्लेटलेट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है बाकी सेल्स जब अगर नॉर्मली काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ आरबीसीज की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही है, तो इस केस में हम लोगों के पास लिक्विफेटिव निक्रोसिस की कंडीशन अराइज हो सकती है। बिकॉज इन लिक्विफेटिव निक्रोसिस वी आर सेइंग डाइजेशन ऑफ डेड सेल्स और दोज डेड सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिक्विड विस्कस मास, कि वो जो रेड सेल जो डिग्रेड हो चुके हैं वो उनको लिक्विड मास अगर सराउंड कर ले तो इन दैट केस देयर विल बी अ लिक्विफेटिव निक्रोसिस। आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ उस्मान हैदर। ओके जी, फर्दर हमने लिक्विफेटिव निक्रोसिस के मैकेनिज्म की बात की थी, ऑटोलेटिक एंड हेट्रोलाइटिक, और फिर हमने इसकी मॉर्फोलॉजी की बात की। द मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिक्विफेटिव निक्रोसिस सजेस्टेड दैट अफेक्टेड एरिया इज सॉफ्ट और इट्स सेंटर कंटेन्स सम नेक्रोटिक डेब्रिसेस, ठीक है, निक्रोटिक डेब्रिसेस मौजूद है। और फिर फर्दर हमने कहा था कि लिक्विफेटिव निक्रोसिस में सेल का कंप्लीट लॉस भी हो सकता है, कि जो डेड सेल्स है वो कंप्लीटली बॉडी से एलिमिनेट हो सकते हैं, देयर विल बी चांसेस। ओके जी, सो दिस वाज अबाउट लिक्विफेटिव निक्रोसिस। फर्दर हमने कहा था लिक्विफेटिव निक्रोटिक टिश्यूज और सेल्स अपीयर क्रीमी येलो इन देयर कलर, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास ओवरऑल लिक्विफेटिव निक्रोसिस है। इसके अलावा केशियस निक्रोसिस और बाकी हमने पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके थे, बट इसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी हमारे पास, तो इस वजह से मैंने कहा कि हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। और साथ में कुछ लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, दैट वाज गुड थिंग। अच्छा जी, सो दिस लेक्चर वाज ऑलरेडी कंप्लीट, so I will leave over here, but if you're, as you many of you people are available here, so I think we can move for the next class which is regarding inflammation। तो acute inflammation हम पढ़ रहे थे, तो हम आगे नई क्लास को कंटिन्यू करते हैं, so stay over here। okay जी, if you have any question regarding this lecture regarding liquefative necrosis, so I can address your questions further। हम लोग जाके अपना जो जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे बात करेंगे। जी उस्मान हैदर, आपका माइक अलाउ कर दिया गया, आपको अनम्यूट कर दिया गया, आप बताएं। जी सर मैं कह रहा था कि ये जो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस है, इसका जो थर्ड पॉइंट था फर्स्ट में, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। कौन से वाला पॉइंट जी? ये है थर्ड पॉइंट। इट इज कैरेक्टराइज्ड, सॉरी सेकंड पॉइंट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय
बैक्टीरियल इन्फेक्शन कि जो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी ये इनकी सेल्स की डेथ हो सकती है जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं। और जब वो डेड सेल्स मूव करेंगे हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में तो वहाँ पे उस केस को हम लिक्विफेटिव नेक्रोसिस कहेंगे। द मास ऑफ सेल्स moving within the bodily fluid or liquid is called liquefative necrosis or liquefative necrotic cells. The mass of cells which are moving through our the mass of dead cells which are moving through our bodily fluids is called as liquefative necrotic cells. ठीक है? जी सर, ये जो पॉइंट है इट इज आल्सो सीन इन हाइपोक्सिक डेथ ऑफ सेल्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये वाला पॉइंट सर। अच्छा देखो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वर्क करने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ हाइपोक्सिस डेथ ऑफ सेल्स विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं जैसे न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स हैं या फिर इसके अलावा जो न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन्स के सेल्स की हाइपोक्सिक डेथ अगर हो जाती है तो उस केस में भी वहाँ पे लिक्विफेटिव नेक्रोसिस, क्योंकि जो डेड सेल्स होंगे लाइक एस्ट्रोसाइट्स डेड सेल्स हैं या फिर हम लोगों के पास दूसरे मैंने बात की न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, तो ये इन सेल्स की ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो ये इन सेल्स को सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अकम्पेन कर लेगा। ठीक है, वो सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये वाले डेड सेल्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और इस केस को भी हम लिक्विफेटिव नेक्रोसिस कह सकते हैं बिकॉज the dead astrocytes or the dead neuroglial cells or the dead neuronal cells will be moving within the cerebrospinal fluid. So in that case we can say there will be chance of liquefative necrosis because liquefative necrosis represents all those dead cells which are moving within the bodily fluids. ठीक है, या बॉडीली विस्कस फ्लूइड्स में अगर निक्रोटिक सेल्स कहीं मूव कर रहे हैं तो वो केस ही लिक्विफेटिव नेक्रोसिस है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब हाइपोक्सिक डेथ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेल्स की हो जाती है, इन पर्टिकुलर न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स हैं या न्यूरोनल सेल्स हैं, तो उनकी डेथ के केस में वो भी सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में CSF में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो उस केस को भी लिक्विफेटिव नेक्रोसिस कहेंगे।